हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह है आपका पार्ट। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? प्लेन मिरर a piece of smooth and flat glass whose one surface is silver coated and other surface act as reflector is called plane mirror. The piece of smooth and flat glass whose one surface is silver coated and other surface act as a reflector is called plane mirror. इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है? How can we show the plane mirror? This is the side where the hair combing are done. This is the hair combing. ठीक है? इस साइड में हेयर कॉम्बिंग है, यह सिल्वर कोटेड है। क्या है? सिल्वर कोटेड एंड अदर सरफेस एट एज रिफ्लेक्टर। यह ऊपर जो है रिफ्लेक्टर की भांति काम करता है। क्लियर? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, the rays of light coming towards a reflector is called incident. A reflected ray the ray of light going away from a reflector is called a reflected ray. Normal, the perpendicular drawn to the reflector at incident point is called normal. Angle of incidence, the incident ray makes the angle with normal is called angle of incidence.
angle of reflection, the reflected ray makes the angle with normal is called angle of reflection. It is denoted by R. These are some terms which is used in the reflection through the plane mirror, or the mirror, any mirror. The incident ray, the ray coming towards the reflector is called incident. The ray going away from the reflector is called reflected ray. Normal, the perpendicular drawn to the reflector at incident point is called normal. Clear? And the angle makes the incident ray with normal is called angle of incidence. The angle formed by the reflected ray with normal is called angle of the reflection. You can see here. This is the plane mirror. This is the point of source P. The ray is going towards the reflector. AB is the reflector. It is called incident ray. Incident ray. And this reflected in direction R. It is called reflected ray. Reflected ray, and this is drawn the normal, and it is called normal. This is the angle I. This is the angle R. यानी AB बराबर मिरर PQ इंसिडेंट रे QR reflected ray QN normal Q incident point and angle PQN बराबर I angle of incidence angle RQN equal to R angle of reflection. The point on the mirror at which the incident ray strike is called the incident point. उसको हम क्या कहते हैं? Incident point कहते हैं. The point at which the point on the mirror at which the incident ray strike is called incident point. इसे हम क्या कहते हैं? Incident point कहते हैं. अब आपको समझ में आ गया कि AB क्या है, PQ क्या है, QR क्या है, QN क्या है. It clear? Now अब देखते हैं how can we show the formation of image in a plane mirror. To show the
formation of image है ना by plane mirror। ठीक है, यहाँ एक नोट करने वाली बात है, the ray of light incident normally to the reflector the refracted ray retrace its path। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह अपने उसी रास्ते पर लौट आती है जिस रास्ते से होकर वह जाती है। ठीक है, तो आइए हम कैसे दिखाते हैं। We can show it in two ways. This is the a plane mirror, AB क्या है? Plane mirror. This is the source of the object, light. With one ray, note 1 था, note 2, we require at least 2 rays to incident on mirror to show the image of an object। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को दिखाने के लिए हमें कम से कम 2 रे जो है इंसिडेंट कराना होता है। तो एक रे हमने इंसिडेंट कराया जैसे P है और यहाँ जो है M पर इंसिडेंट कराया। इट इज इंसिडेंट नॉर्मली, ये जो एंगल है यह जो है नॉर्मल है ना 90 डिग्री। तो इट रिट्रेस द पाथ, यह वापस अपने उसी रास्ते पर लौट आती है। और एक दूसरी रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, इसे हम ऑब्लिकली इंसिडेंट कराते हैं जो यह रिफ्लेक्शन के बाद यह इस डायरेक्शन में चली जाती है, जैसे ये Q हुआ, ये R हुआ। नाउ वी प्रोसीड द बोथ रिफ्लेक्टेड रे बिहाइंड द mirror। अब हम इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो दोनों जाकर P डैश पर मिलते हैं। नाउ वी प्रोड्यूस द बोथ रेज बिहाइंड, है ना, बोथ मीट एट द P डैश। P डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट P। इन नेक्स्ट वे हम कैसे दूसरे दिखा सकते हैं। दिस इज ए प्लेन मिरर, AB, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। दोनों रे भी हम इस पर इंसिडेंट जो कराते हैं वह जो है ऑब्लिकली कराते हैं, और यह जो है रिफ्लेक्टेड हो गई इस डायरेक्शन। एक दूसरी रे यह भी ऑब्लिकली इंसिडेंट कराते हैं, यह भी जो है इंसिडेंट कर गई इस डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि यह Q है, यह Q1 है, यह R है, R1 है, P है। ठीक है, अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड द बोथ रिफ्लेक्टेड रे
ये दोनों जाकर P डैश पर मिलती है। जहां ये मिलती हैं वहीं पर इस ऑब्जेक्ट P का इमेज P डैश होता है। तो दिस इज द वे टू शो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ वी नो हियर अबाउट द व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब जो है इमेज का नेचर क्या होगा? ठीक है, दोनों में हमने देखा कि पीछे की ओर बढ़ाने पर द रिफ्लेक्टेड रे नॉट मीट रियली। यहाँ हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्टेड रे वास्तविक रूप से एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ये जो है इन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हैं। दैट मीन्स दे मीट वर्चुअली। इफ द रिफ्लेक्टेड रे मीट वर्चुअली देन द इमेज विल बी ए वर्चुअल इमेज। इमेज वह क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है ना? Since a reflected ray meet virtually, so the image for be virtual। क्योंकि रियल इमेज तभी बनता है जब रिफ्लेक्टेड रे वास्तविक रूप से मिलती है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो है वर्चुअली यानी पीछे की ओर बढ़ाने पर मीट करती है। इट क्लियर? पीछे की ओर बढ़ाने पर मीट करती है। आइए प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, जो इमेज बनता है वह किस तरह का होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा वह हमेशा क्या होता है? वर्चुअल यानी काल्पनिक होता है और सीधा होता है। इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है मिरर के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होती है। यानी आगे मिरर के आगे यदि 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। द साइज ऑफ इमेज इज एज सेम एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज की साइज होती है वह ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होती है। यानी इसमें जो इमेज बनता है वह ऑब्जेक्ट की साइज से न छोटा बनता है और न बड़ा बनता है। ठीक है, यदि ये जो इमेज बनता वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इट शो द लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का अर्थ हुआ कि इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ उठाएं तो यू लुक योर राइट टुवर्ड्स योर लेफ्ट। आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपका दायां है वह मिरर में आपकी बाईं ओर है। इसी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इमेज जो बनता है वह वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। यदि ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी से मिरर की ओर खिसकाया जाए या मिरर से दूर ले जाया जाए तो इमेज भी उतनी ही दूरी से मिरर की ओर खिसकेगा या मिरर से दूर जाएगा। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखा जाए, उसको नहीं छेड़ें और मिरर को जो है किसी एंगल से हम टर्न करें
तो रिफ्लेक्टेड रे उसके दूने एंगल से टर्न कर जाती है। यदि हम मिरर को 10 डिग्री सेल्सियस है ना से मोड़े घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री से मुड़ जाती है। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। यह जो है वो प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की जो के द्वारा फॉर्म होती है। अब हम आते हैं, देखते हैं, यह सीधा मल्टीपल इमेज। हमने कई जगह देखा है कि एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल यानी कई इमेज बनते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल in a parlor or in a saloon when you are sitting for the hair cutting. You see the image in front mirror of your back side. ये कैसे घटना होती है? इस घटना को हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन। The reflection है ना takes place again and again and again, है ना, through more than one reflector is known as multiple reflection. इस घटना को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि जब कोई रिफ्लेक्शन बार बार है ना भिन्न भिन्न रिफ्लेक्टर के जरिए होता हो तब इसको घटना को हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी इसमें एक से अधिक मिरर का उपयोग होता है। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पार्कर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, है ना, नंबर्स ऑफ इमेज formed by using two plane mirror। हम यदि दो प्लेन मिरर का यूज करें तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? ठीक है ना, द नंबर ऑफ इमेज depend on the angle between two mirrors। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज जो है ये दोनों मिरर के एंगल के बीच पर निर्भर करता है कि बीच का एंगल क्या है। And it is given by number of image n equal to 360 by theta, where n equal to number of image, theta equal to angle between two mirrors। ठीक है, if 360 by theta is equal to an even number, then number of image बराबर n-1। क्लियर? if
360 by theta is equal to an odd number, then number of image बराबर है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, एफ थीटा बराबर सपोज दैट 45 डिग्री, देन 360 by 45 इक्वल टू 8, इसलिए नंबर ऑफ इमेज बराबर 8 minus 1 बराबर 7। एक थीटा इक्वल टू 72 डिग्री, देन 360 by 72 बराबर 5, सो द नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 5। यदि ऑड है तो वही रह जाएगा, यदि इवन है तो एक संख्या कम हो जाएगी। इट क्लियर? नाउ come on the laws of reflection. Laws of reflection. Laws of reflection. There are two laws of reflection. रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal to the incident point are all three lie in same plane, ठीक है। दूसरा, the angle of reflection always be equal to the angle of incidence। जैसे आप देख लें, ये है आपका प्लेन मिरर, दिस इज P, Q, R, दिस इज नॉर्मल, and I, R। तो यहाँ देखें, PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्लेक्टेड रे, and the normal at incident point, all three lie in the plane of the board, and the angle of incidence, ठीक है, PQ and बराबर RQ, and that is the angle I equal to angle R, ठीक है। ये होता है, this law is not only true for the plane mirror, for any mirror these laws are applicable। किसी भी तरह स्फेरिकल मिरर में भी हो तब भी यह नियम सही है, प्लेन मिरर हो तब भी यह नियम सही है। So today we study about the reflection through the plane mirror. In the next session I will talk about the reflection through the spherical mirror. Thanks.